All right, now we move on to our next panel discussion. I request all the delegates to remain seated. So the next topic is sustainability and the salon industry. How practically and commercially realistic is it for salons to go green? क्या ये practically possible है कि salons eco-friendly हो जाए completely? ये हमारे topic है अगले panel का. And my panelists for this session are Dr. Rekha Chaudhary, Global Wellness Ambassador. Hello, Rekha. Thank you so much for joining us today. Dr. Rekha Chaudhary is a social entrepreneur and wellness crusader. She is the head of One Line Wellness Education. Her patented concept of pre- and postnatal care has got her global recognition with Harvard University, Johns Hopkins University, and the Oxford University. She is the first Indian in the wellness industry to be honored with a doctorate degree by Sorbonne University, France. She is also the visionary who started the World Digital Detox Day. Can we have a round of applause for Dr. Rekha Chaudhary? Please have a seat. Next, I would like to request Mr. Sachin Kamath to step on the dais. Mr. Kamath is on our panel today as an industry expert, having recently transitioned from Enrich, where he was a director on the management board, having spent over a decade driving Enrich's thought leadership in the salon services and retail space. In his new assignment, he is now a consultant with Zenotti, the #1 cloud software in the world for the salon, spa, med spa, and fitness industry, powering over 25,000 beauty and wellness businesses across 50 countries. A round of applause for Mr. Kamath. And my final panelist for today is Mr. Pushkaraj Chennai, CEO Lakme Lever. He's responsible for the professional beauty team of Hindustan Unilever Limited. Propelled by the purpose to beautify the future of 5 million consumers, experts, and partners, the team has grown the network to 490 plus Lakme salons, 120 plus Lakme academies, and scaled up the prestige brand TG and Dermalogica. Thank you so much for joining us, Pushkaraj. A round of applause for Pushkaraj Chennai. And I will join the panel here and start with the discussion. All right. Thank you so much for being with us today. I'll start with Pushkaraj. Why is it important for salons to be eco-friendly? Are we that big an industry that our contribution actually makes a difference to being carbon neutral? See, I think, hi everyone. First of all, yes, we can speak in Hindi. Everyone here knows English. Correct? Can we do English, please? Thank you. Sorry. Okay, we'll try a mix of both, no, right? Sachin It's sir just will that the make up topic for is it. such that, you will not be able, I at least will not be able to do justice to this with a language restriction. See, I think split it into two parts, right? And the first part, I think it is important to do the right things, right? As a citizen of the country, as a citizen of the world, I think it's important to do what is right, and virtue is its own reward, right? So from that perspective, if you look at sustainability or you look at climate change, right, this is a big issue, right? The biggest problem that humans and the world faces today is that we may not exist 20 years or 25 years down the line, right? And you can see around us, when we thought 10 years back, we thought climate change will happen at some point in time, right? But today we see natural disasters happening all around us. Kerala, Uttarakhand, Brazil, London, they're happening all around us, right? If you look at consumption today, we are consuming equal to 4 Earths. अगर आज के दिन में आपको, if the earth has to take care of humans and the way we are consuming, we need 4 Earths, right? Which means that we are completely out of whack, right? So you look at it from all perspectives. This is something that we must do, correct? And you can be in any industry. I think you should
just take the right steps because you need to exist. Look at just the Indian situation right now. If you look at what is causing climate change or creating a bad carbon footprint for us, it's basically three things, right? In India, 76% of power is made from coal, right? So even if you're using EV, it's actually creating a carbon footprint somewhere else. EV is not solving the problem. Okay, it's solving the problem in the city. It's reducing pollution, but it is using coal to produce that electricity. So reducing power consumption and switching to renewable sources is one important thing, right? Half the job will be done with that. 1/4 of the job will be done if we are mindful about wasting food and how food is produced, right? I'm talking from an India point of view first, not so much about salons. So if we are only going to be responsible about food and food consumption and reducing wastage, that is 1/4 of the job done. And the last 1/4 is the top 1/10 of India. They are consuming almost like global citizens, right? So they consume a lot. And you can understand, whether it's buying more clothes or traveling irresponsibly, we just end up consuming a lot, right? So it's the top 1/10 is equal to the carbon footprint of the remaining 9/10. So these three things we should bear in mind as Indians. This is all we need to do. Otherwise, I think in general, in India, our upbringing is such that we are always very mindful about consumption. We are very mindful about reusing, right? Like in any household, right? If you'll wear a t-shirt and after a point it doesn't work, you'll use it, to clean the car or something, or you never throw it away, For right? You Holi don't buy first. fresh stuff. We use it for Holi first and then make it into. Correct. You use it for Holi, then you use it, right? So I think in general, the Indian way of living is what today the world calls circular economy, circular consumption, reduce, reuse, recycle. So I think we should stick to our basics and just be mindful of these three things, right? And as a citizen in the world economy or the Indian economy, salons, whether we are small or big, we must take charge and do this. And I'll give an example of when, as an industry, we took charge of a problem and how the world rewarded us for it, right? So when COVID hit, I think the most responsible industry in taking care of their consumers was the salon industry, Absolutely, right? yeah. And today the world has rewarded us for that. So it is important. So one, you must do it because you're a good citizen. Two, you must do it because finally virtue will pay. Correct? So I think it doesn't matter whether you're small or large. It matters that, today millions of consumers come to a salon. If you do it, some of them will go back and emulate it. So you will do something good, right? Good karma always pays. पुष्कराज ने अभी कहा, बहुत सारे कारण दिए कि विश्व स्तर पे क्यों गो ग्रीन यानी कि पर्यावरण की तरफ संवेदनशील रहना क्यों जरूरी है, राइट? अगर ये तय हो गया कि ये करना जरूरी है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इसको करें कैसे। तो इसके बहुत सिंपल प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहले तो ये सोच लो कि आप जहां पर भी हो वहां से शुरुआत करो। ये मत सोचना कि मेरा एक ही स्टोर है, मेरे 4 ही स्टोर है, मेरे एक व्यक्ति से या एक स्टोर के कुछ करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है। तो जहां पर भी आप हो वहां से शुरू करो। जितना भी आपसे हो सकता है वो करो, लेकिन जो आप कर रहे हो वो रेगुलरली करते रहो और उसको बरकरार रखो। छोटी छोटी चीजें हैं। आज आपको बाजार में एक फिक्सचर मिलता है जिसको आप अगर नल में लगाते हो तो पानी का जो फ्लो है वो बरकरार रहता है, लेकिन 1 मिनट में जो 6.5 लीटर पानी जाता है उसकी जगह पे 2.5 लीटर हो जाता है। ये हम में से हर एक कर सकता है, अपने घर पे भी कर सकता है, सैलून में भी कर सकता है। हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं, करेक्ट? बिल्स छापते हैं, उनको अगर हम कस्टमर को ईमेल के द्वारा भेज दे तो वो कागज बच जाएगा। हम लोग टॉवल्स इस्तेमाल करते हैं ढेर सारे, जो कि फिर लॉन्ड्री भेजने पड़ते हैं। ऑलरेडी कोविड ने हमको हाइजीन के कारण वो सिखा दिया है, लेकिन जो हम डिस्पोजेबल यूज करते हैं उसको भी अगर कोई ऐसे सिंथेटिक नहीं लेकिन नेचुरल डिस्पोजेबल हम यूज करें तो वो भी एक फायदा होगा। तो जहां पर भी हो वहां से शुरुआत करो, आज शुरुआत करो, जितना हो सकता है उतना करो, लेकिन वो करते रहो। और अगर ये चीज हर एक व्यक्ति ने और हर एक स्टोर ने की तो भी हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हर एक व्यक्ति अगर ये करने लगेगा
तो बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। Hello. Hello. Yeah, good afternoon or global namaste to everybody. This subject what we are talking about, जो subject आज हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील ऐसा subject है. And when it comes to the sustainability and saloon, so again it is a community based approach. मीन्स एक कम्युनिटी चाहिए जो इसको अप्रोच कर सकती है, अकेला करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं. So as a saloon industry, when we come together, beauty and wellness industry, when we come together, so as we did what work we did in the COVID period, हम लोगों ने सबने साथ में आके किया है. अगर साथ में नहीं आते थे तो शायद हमें परमिशन कभी मिलती ही नहीं थी. यही एक वो वजह होती कि यूनिटी से काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो ये सस्टेनेबिलिटी को जो हम लोग साथ में आके एज अ कम्युनिटी, इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स टू द सेविंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ है जो अगर आज हमें अफेक्ट नहीं करती तो दिल को कुछ खराब नहीं लगता है, हमें कुछ उसको हम लोग ध्यान नहीं देते. अगर हमें आज अफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो हमें क्या देखना है, सोचना है फ्यूचर का, ऐसे बहुत लोगों की एटीट्यूड होती है. और वही एटीट्यूड ये सब्जेक्ट के टूवर्ड्स भी है. सो हमें आज से ही सोचना चाहिए कि आगे चलने वाले जो जनरेशन है, आगे की आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हम लोग अपने तरफ से एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी. सो भले अलग अलग तरीका है, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी इन द सोसाइटी विल डेफिनेटली, सॉरी इन द सलून विल डेफिनेटली हेल्प. जैसे सचिन सर ने बताया कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप प्रोडक्ट यूज़ करें, प्रोडक्ट के माध्यम से आप अप्रोच ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग हमेशा थर्मल मास्क लगाते हैं, राइट. जब हम लोग गणपति के लिए बोल रहे हैं, गणपति बापा हमें अभी मिट्टी का चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं चाहिए. उसके पीछे रीज़न है, बहुत लोग उसके पीछे कुछ ना, सब जो रिसर्च आया है रिसर्च बता रहा है अभी कितना प्रॉब्लम है. हम लोग सब लोग देख रहे हैं, ईदगाह देख रहे हैं जहाँ पे उसको विसर्जन किया जाता है, कितना उसको सफाई के लिए कितने लोग उसके तरफ भाग रहे हैं. जूहू चौपाटी पे आप जाके देखोगे दूसरे दिन तो उसका गंदगी कितना अलग तरीके से दिखता है, जो अगले दिन उसका विसर्जन का प्रोसेस और नेक्स्ट दिन का उसका रियल दृश्य बहुत अलग नज़र आता है. वही सेम अपने सलून इंडस्ट्री में भी हो रहा है. सलून इंडस्ट्री में भी जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को भी लेके अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिविटी दिखा दे, थोड़ा सा, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इंडस्ट्री के लिए और सोसाइटी के लिए. ऑफ कोर्स इट विल बी हेल्पिंग टू सेव आवर अर्थ को ब्रीदिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे. सो ये एग्जाम्पल हुआ रबराइज मास्क है जो डायरेक्टली लोग डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं डायरेक्टली. जब हम लोग बोल रहे कि सूखा कचरा और गीला कचरा अलग रखना है, तभी भी हमारा एटीट्यूड है कि हम लोग वो डायरेक्टली पानी में डाल देते हैं. सो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग अगर थोड़ा सा कॉन्शियस रखें और इसको बचाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैं व्हेनेवर आई टॉक टू पीपल रिलेटेड विथ माय प्रोडक्ट, हमारा ब्लैक मास्क का एक है प्रोसेस में अगर बोलती हूँ, अगर आपको रियली आपको अगर एफर्ट डालने हैं थोड़े, उसको जब वॉश करते हो पानी आप पौधों को डाल दो, लेकिन फेंको मत, कहीं पे भी मत डाल दो. नेचुरल जो है एटलीस्ट पौधों को ज़्यादा मिनरल मिल सकता है. सो दीज आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट्स. कंज्यूमेबल जो चीज़ें हैं जैसे इन्होंने बताया, पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा यूज होता है. सो आर वी रिस्पॉन्सिबल टू सेव दिस? येस, वी आर रिस्पॉन्सिबल. आज हमें दिख रहा है सब जगह पे इजीली पानी मिल जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे जगह पे आप अगर टीवी पे न्यूज़ देखते हो, ऐसे ऐसे जगह पे जिनको पीने के लिए भी पानी नहीं. और अपना कंप्लीट बेस बिजनेस जो है अपना कंप्लीटली सलून इंडस्ट्री का कंप्लीट बिजनेस है जो पानी के साथ में है. सो वी शुड बी थैंकिंग द पीपल, दोज पीपल हु आर प्रोवाइडिंग अस प्रॉपर सप्लाई. बट उसी के साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान दे के अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं. जैसे हम लोग कॉन्शियस है, ट्रीटमेंट प्रॉपरली जाने चाहिए कस्टमर्स को, सर्विसिंग प्रॉपरली होनी चाहिए. उसी के साथ साथ एक सब्जेक्ट अगर हमने डाला कि सस्टेनेबिलिटी को लेके हम लोग सलून में क्या क्या सेव कर सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, एक्शंस ले सकते हैं, अगर ये भी हमने अगर डाला तो बहुत ज़्यादा हेल्प हमें हमारी तरफ से होगा. और यही है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में सभी लोग साथ में आएंगे, उसकी राह नहीं देख के अपने खुद से हम लोग शुरू करना चाहिए. जो भी सलून ओनर्स हैं सभी ने वो करना शुरू करना चाहिए. एक एक करके
10 से 1000 लोग बनने में टाइम नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ अवेयरनेस कैंपेनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अवेयरनेस कैंपेनिंग हमने शुरू कर दिया तो ये 2-3 एफर्ट्स जो है डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। Thank you, Rekha. Is this working? Excuse me. The mic is working. Can you hear me? Yeah. You can hold it. So coming back to you, Pushkaraj, you can't hear me, right? Sound check. No. Okay, coming back to you, do you think some regulatory policies are important so that salons comply with sustainable or eco-friendly efforts? See, I think regulatory policies will always help, right? अगर कोई laws हो, जैसे पहले single use plastic ban हो गया था, plastic bottles were banned, plastic bags were banned. That helps because उससे क्या होगा कि overnight people will change, right? But that is when you are forced to change. People don't know why they are changing; they are just forced to change, right? So I think regulatory policies will help, but largely I think what will really help is education. If we bring sustainable practice into every education module, all academies do that when they are teaching people how to cut hair, how to do makeup, how to do skin therapy. At that point in time, if small modules are integrated on how to keep those practices more green or more sustainable, I think that makes a big difference, right? Second thing is that if there is regulation, and one part is regulating and not allowing, or you can pass on more benefits to brands which are more compliant or more sustainable, right? Yeah. So if you've got biodegradable disposables and if taxes on those are lower, right? Or companies which operate on, with green chemistry, they have more benefits. I think the world will take to it, right? And sometime back, actually, Sachin was telling us, so I'm just, reiterating that. Today, we may think that the cost of sustainability is high, but actually, as more and more people take it, and I will, request Sachin to elaborate on that, the cost will come down, right? And I think the simple thing we have to remember is, if that practice does not bring down your cost, it is not going to be the right green practice. It has to bring down cost. So actually speaking, it has to simplify your business. It has to bring down your cost. जैसे सचिन ने बताया, if you use that small device, which will reduce your water consumption, your cost will come down. If you have energy efficient, devices, ACs, etc., right? You've got like 5-star rated ACs. That will bring down your cost. So unless and until you realize that the sustainable practice or green practice is going to bring down your cost and keep it really, really simple. You don't have to turn it into a green salon. Just take 2 green steps. That is enough, right? That will give you more savings, make your business more profitable. और आपको लगेगा कि चलो why don't I implement 2 more things? Take paper, what Sachin mentioned. And in fact, with Zenoti's help, we went into paperless billing at Lakme Salon in 2019. That actually helped us in the pandemic, right? बट आप ये सोचिए कि पेपरलेस बिलिंग करने में आपकी क्या कॉस्ट है? 0. एंड यू आर सेविंग द एनवायरनमेंट बाय नॉट प्रिंटिंग पेपर, बट यू आर ऑल्सो रिड्यूसिंग कॉस्ट बाय नॉट प्रिंटिंग पेपर, राइट? सो मोस्ट सस्टेनेबल 90% ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस will reduce your cost immediately. The balance 10% will reduce your cost in the medium term. Correct? So I think it's actually very simple. It's not such a big rocket science and you have to transform. I said it's not a transformation thing. It is just small steps that you have to take. Yes, sir. हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के तरफ संवेदनशील होने का, लेकिन आई थिंक जैसे रेगुलेशन यानी कि कायदा कानून इसके लिए लागू करना इम्पोर्टेंट होगा, उससे भी ज्यादा हम सब बिजनेस के लोग हैं और सबसे पहला हमारा ध्यान ये होता है कि मैं ऐसे सभी स्टेप्स लूंगा जिससे कि मेरा बिजनेस पहले सस्टेनेबल हो. अगर मेरा बिजनेस सस्टेनेबल होगा फिर और पर्यावरण ये वो मैं सब कुछ कर सकता हूं. करेक्ट? तो ये सभी चीजें करने से जो पुष्कराज कह रहे हैं आपका बिजनेस ही बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होगा. छोटी सी बात लीजिए, इन्होंने कहा कैशलेस बिलिंग, एक स्टेप पेपरलेस बिलिंग.
मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं, पूरा कैशलेस सैलून बना सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर कागज लगता है तो दैट इज इन कैश, और लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर जर्म्स कुछ होते हैं तो वो कैश में होते हैं, क्योंकि 10 हाथों से गुजरता है। अगर आप अपने स्टोर को कैशलेस कर देंगे, हमारा देश डिजिटल करेंसी लाने की तरफ बात कर रहा है। यहां पर ये प्लास्टिक की बोतलें हैं, हाँ, मैं आपको बता दूं, आज से लगभग 2 साल से ज्यादा हमने एनरिच में ये प्लास्टिक की बोतल को कन्वर्ट करके कांच की बोतल बनाई जो रीयूज हो सकती है। उसमें इनिशियल थोड़ा सा खर्च है, उसको हाइजीनिकली वॉश करना पड़ता है, लेकिन आप सोचो इस बोतल का सिंगल यूज, उसके बाद ये कभी भी हजारों साल तक वही रहेगा, राइट। और ये छोटी चीज करने से भी आपको फायदा होगा। एक तो रेगुलेशन, दूसरा आपके बिजनेस का फायदा, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, ये आज एक पूरा कंज्यूमर का सेगमेंट है, आपके हमारे जैसे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं कि मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा और ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा, उनके साथ व्यवहार करूंगा, ऐसे सैलून में जाऊंगा जो कि ऐसा काम करते हैं, वो भी पर्यावरण की तरफ संवेदनशील है। आज से 3-4 साल पहले एनरिच में हमने एक ऐसा पूरा ब्यूटी का रेंज बनाया जिसका नाम है बॉर्न एथिकल। वो पूरा 95% से ज्यादा नेचुरल है, उसके इंग्रेडिएंट्स नेचुरल है, उसका पैकेजिंग नेचुरल है, उसका जो आउटर कार्टन है वो भी रिसाइकल्ड, और वहीं से जो पुष्कराज कह रहा था उसका जिक्र है। ये हो गया वर्जिन प्लास्टिक, जो पहली बार ग्रैन्यूल से प्लास्टिक बना। एक और प्लास्टिक होता है जो कि इसको रिसाइकल करने के बाद बनता है, इसी को दूसरी बार यूज करने से। हम जब ये पैकेजिंग कर रहे थे, हमने पता किया कि जो रिसाइकल किया हुआ प्लास्टिक है उसका दाम वर्जिन प्लास्टिक से कई गुना ज्यादा है। अभी ऐसा होगा तो कौन इस्तेमाल करेगा, लेकिन थोड़े लोगों को पहले कदम लेना पड़ेगा। और हमने बहुत मैं कहूंगा धीरज रख के, हिम्मत करके हमने कहा कि नहीं, हम पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल्ड प्लास्टिक ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब वैसा प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे तब जाके वो प्लास्टिक का दाम कम होगा, तब बाकी लोग करेंगे। तो हम में से हर एक को एक और भी दायित्व है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम भेड़ चाल करेंगे या हम लीडर्स हैं तो हम पहले कदम उठाएंगे, और बहुत सारे कदम हमको ऐसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो कि शायद हमारी जिंदगी में उसका फायदा डायरेक्टली हमको नहीं आएगा। थोड़ी चीजों का इस महीने आएगा, इस 6 महीने में आएगा, इस साल में आएगा, लेकिन थोड़ी चीजें हमको करनी पड़ेंगी जो कि अगली पीढ़ी के लिए आएगा या आगे के ही लोगों के लिए आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एक बिजनेस से हमारा पूरा लाइवलीहुड चलता है तो ये हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है। तो नॉट जस्ट रेगुलेशन बट बिजनेस, ऐसे कंज्यूमर भी आपके साथ ज्यादा आएंगे अगर आपने ये काम किया तो, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। बहुत अच्छा बताया सचिन जी ने कि कंज्यूमर, हमेशा हम लोग बिजनेस को पहले ध्यान में रखेंगे, सस्टेनेबिलिटी बाद में आएगी। ये रियलिटी सबने एक्सेप्ट करना ही चाहिए, जो है बिजनेस फर्स्ट आएगा, उसमें से कमाएंगे तो आगे हम लोग बोलते कि क्या बोलते समाज सेवा करेंगे, राइट। सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग व्हाट ही इज गिवन, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें। ये मेरा तो मन करता है कि जैसे यूरोप में पानी के लिए भी कितना पानी कंज्यूम होता है, उसके ऊपर भी पैसा लगता है। वी आर नॉट सीरियस अबाउट डेट। हमारे यहाँ पे इतना उसका कुछ अभी तक इतना कॉस्टिंग लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा जो भी देते हैं, थोड़ा बहुत जो हम लोग देते हैं, नलपट्टी जितनी भी भर्ती होगी उतना ही होगा। उसके अलावा कितना लीटर पानी हमने यूज़ किया है उसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लगाया नहीं है। तो रूल्स जब आएगा, जैसे प्लास्टिक के ऊपर रूल आया, उसके बाद एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हुआ, उसके बाद में बहुत सारे लोगों को रोजगारी मिली, कपड़े की थैलियाँ मार्केट में दिखने लगी। वो भले अच्छी होगी, फैशनेबल होगी, जो भी होगी, लेकिन एटलीस्ट कितने हजारों हाथों को काम मिला उसके वजह से। सो ये हमेशा होता है कि सर्कल है, हम लोग एक चीज़ करते हैं, उसका अफेक्ट दूसरे के ऊपर हो रहा है।
जैसे प्लास्टिक का थैली बंद करने के बाद इमीडिएटली हजारों हाथों को काम मिला, उसी के साथ हजारों हाथ जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे शायद उनका काम कम हो चुका होगा, लेकिन अदर साइड वो प्लास्टिक जो डिस्कम्पोज होना है, एक प्लास्टिक को डिस्कम्पोज मिट्टी में होने के लिए हजारों साल लगते हैं, हमें शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। सालों साल लग जाते हैं उस प्लास्टिक को मिट्टी में मर्ज होने के लिए, जबकि हमारी ह्यूमन बॉडी है जब दफनाया तब कुछ सालों के बाद वो मर्ज हो जाती है। लेकिन हम लोग ने जो क्रिएट किए हुए ऐसे कुछ चीज़ है जो फुटप्रिंट हम लोग हमेशा के लिए पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी माँ के मिस उसके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक दैट पॉइंट ऑफ व्यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, एंड वेर एवर यू आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा यही बताया जाता है जहाँ से आप वो वहाँ से शुरू करो, दुनिया की राह मत देखो। यहाँ से हमें चांस है हमारे इंडस्ट्री से ये छोटे छोटे चीज़ों में हम लोग अगर चेंजेस करें। इन्होंने जैसे बताया कि प्लास्टिक के बॉटल्स है, मैंने भी खुद देखा है एनरिच में सब जगह पे उनके पूरे ग्लास के बॉटल्स उनके यहाँ पे। मी बीइंग एज इन द वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस एम्बेसडर हूँ, दुनिया में वेलनेस की बात करती हूँ, तो मेरे खुद के ऑफिस में जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे मैं भी एडवाइस करती हूँ प्लास्टिक की बॉटल्स आप बंद कर दो। नॉट ओनली फॉर दिस लाइक नो सस्टेनेबिलिटी इसके लिए, पर खुद के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक में पानी अगर ज़्यादा टाइम है और धूप में प्लास्टिक की बॉटल बाहर है और वही पानी हम लोग बिस्लरी बहुत इजीली पी लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो बिस्लरी आते हुए कितना टाइम वो धूप में पड़ी थी, बॉटल कितने टाइम वो बाहर थे और वो वही बॉटल आपके पास आके कोल्ड स्टोरेज में रख के आपके साथ में प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट कितना है ये भी तो सोचने की ज़रूरत है। तो हेल्थ के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ ये सब अप्रोच हमें सबको साथ में लेने की ज़रूरत है। सो ब्यूटी इंडस्ट्री शुड बी टेकिंग दिस स्टेप टुगेदर, and this is the good topic, good platform where we are at least started talking about this subject. Yes. So रेखा, अभी हमने अग्री किया कि सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस ये हैंड इन हैंड जाता है, तो क्या आपको लगता है इको फ्रेंडली को नीश बनाकर भी सैलॉन्स आगे बढ़ सकते हैं कि हम इको फ्रेंडली सैलॉन है, ये कर कर मार्केटिंग हो सकती है, ये करके एडवर्टाइजिंग हो सकती है और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है? Yes, it's a very valid point. हम लोग बोलते हैं जितना रेयर होता है, जितना कम होता है वो ज़्यादा महंगा होता है, ज़्यादा लग्जरी होता है। सो आई एम श्योर दैट इज नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इको फ्रेंडली अप्रोच टूवर्ड्स टू द सलून, क्योंकि जो टॉवेल आप यूज़ कर रहे हो, जो आप डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट लाइन जो भी यूज़ कर रहे हो, सभी को जब चेंज करने का टाइम आता है तो ऑफकोर्स इट बिकम्स एक्सपेंसिव, और एक्सपेंस automatically it goes to the consumer head. So whether that consumer is ready to give to us, that first question come to the owner mind. Like जो भी है, जिनको भी खोलना है सलून, उनके दिमाग में वही आता है कि मैं अगर ये पूरा दूंगा तो मुझे वो कस्टमर्स वो तरीके का मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सर्विस वो तरीके से बेच पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं ऑलवेज बिलीव करती हूँ कि कुछ अलग करना है तो उसको आपका जो एग्जिस्टिंग जो है उसी में आप उसको दूसरा एक साइड आप अप्रोच ओपन कर सकते हो जो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली है, कम्प्लीटली इको फ्रेंडली बेस है, अप्रोच है जो भी है, एंड ऑफकोर्स दिस रेयर थिंग विल डेफिनेटली बिकम द लग्जरी। सो एवरीवन शुड ट्राई दैट। मैंने अभी आपको कहा कि आज की तारीख में इको फ्रेंडली निश नहीं है, निश यानी कि बहुत छोटा सा एक संकुचित सेगमेंट, ऐसा नहीं रहा अभी। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल, हाँ, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि हम लोगों ने एक ब्रांड स्किन केयर का पूरा शुरू किया, हम पहले नहीं थे उसमें, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये किया है। मैंने ये भी आपको कहा कि एक पूरी कंज्यूमर की कॉम है जो ऐसे जगहों पर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। साथ में ये भी याद रखिए कि ऐसे लोग होंगे जो जगह पर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस नहीं होते, वहाँ पर वो जाएंगे भी नहीं। तो आपको दोनों तरफ से सोचना होगा। एंड फाइनली मेरे हिसाब से इसको कोई एक आप स्पेशल चीज मत समझिए, इसको अपनी जिंदगी का एक भाग बना दीजिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं एक छोटा सा घर बना रहा हूँ गांव में, और मेरे आर्किटेक्ट ने, और मेरे और भी आर्किटेक्ट दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप मिट्टी का घर बनाओ,
मेरी बीवी ने मुझे बताया कि जो मुझे बंबई में कंफर्ट है वो अगर वहां नहीं होगा तो मैं नहीं आने वाली। तो मैंने फिर मेरे आर्किटेक्ट को कहा कि सबसे पहले मेरे परिवार की तरफ मुझे संवेदनाशील होना पड़ेगा, वो नहीं आएगी तो उस मिट्टी के घर में मैं जाके करूंगा क्या। सो फाइनली हमने बैठ के, शायद हम 100% नहीं लेकिन 75-80% कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि या तो 100% करेंगे या तो नहीं करेंगे, या उस लेवल पे आएंगे तभी शुरुआत करेंगे। जितनी भी छोटी तरीके से आप शुरू कर सको उतना कीजिए, और आपको पता होगा कि वो आज की तारीख में निश नहीं है, वो छोटा सेगमेंट नहीं है, वो बहुत बड़ी लहर हो चुकी है। बहुत सारे जो ट्रेंड्स आते हैं, एक कहावत है कि हम लोग छोटा सा ट्रेंड देखते हैं और हमको लगता है कि नहीं अभी वो ज्यादा कॉमन नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत समय तक धीमा रहता है, फिर एक लेवल पे आके जितना स्विफ्टली बढ़ जाता है, उसके पहले अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो बाद में आपके पकड़ में वो आएगा ही नहीं। यू विल बी टू लेट। सो डोंट वेट फॉर द ट्रेंड टू बिकम बिग, स्टार्ट अर्ली। What would you like to add? See, I think they have said it all. मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा, बस ये बोलूँगा कि I don't think you should think about swinging the other side. ये ऐसे नहीं है कि आप नॉन ग्रीन और ग्रीन या सस्टेनेबल नॉन सस्टेनेबल, राइट? टेक one step at a time. If we all decide that every month हम एक step लेंगे, तो first month we will look at water consumption, second month we will look at power consumption, and more or less many of these things you have to do when you set up the salon, right? Third month we will look at local sourcing, right? Fourth month we will look at paperless billing. ऐसे if you just take one step at a time, and you don't need to take it every month, you can say मैं हर quarter एक improvement करूँगा, right? You can switch out of this. It is so about 2018 में in Lakme we decided to go, हमने campaign बनाया था Beautify the Future, and we decided to do 6 things. Okay, so we went without bottles. We had, glass bottles. We had to, set up a system to be able to use those bottles again. We went plastic free. We went paperless. We switched to those nozzles to reduce water consumption. We did 6 things at a time, and we saw the benefit of it. We saw the benefit because our customers said good things about us, and we saw cost of operation actually come down. But I think that is not the end of the journey. Every month, every year, whatever frequency, start taking small steps in that place. Such a small thing I will tell you. If you have staff from the neighborhood, अगर आपका staff जो आपके salon में आ रहा है, right? If they are coming from just 2 kilometer radius, rather than traveling from really far, and if you have got salons over everywhere, you can easily manage that. इससे क्या benefit होगा if your staff comes from the local environment? If your staff is coming from close by, कोई फायदा है इसका? नहीं है कोई फायदा है? Your staff will be happier. They will spend less time travel. Correct? You can keep your salon open for more hours also. Possible? Correct? Your staff will be certainly happier, right? They don't have to travel a long time. इससे carbon footprint भी कम हो जाएगी, because they are not taking their bike and traveling for 10 kilometers. They are traveling only 2 kilometers. And imagine this multiplied by 30 days, multiplied by 12 months, multiplied by 5 years. Correct? So just small steps, local sourcing, right? Reducing your water consumption, switch out of single-use plastic, use biodegradables, use brands which are vegan. Correct? Just small steps, they are all available. Take one step at a time. Don't think of switching to green and suddenly saying green, environment green. Customers will see value in it. Correct? Light green, light green, dark green, small stripes of green, anything is fine. This is the right thing to do, right? Whether it is patriotism, whether it is religious, whether it is, just spirituality, take small steps toward it, right? And then you will yourself see the benefit of it. आप देखोगे कि आपका business more profitable है. आप देखोगे कि consumers will appreciate it more. You will take more steps, right? When you look about patriotism, what is the right kind of patriotism? All the time? या भारत कभी कभी मेरा देश है? Correct? When there is a India-Pakistan match, that time I'm patriotic. Remaining times I don't care, right? It's not work, doesn't work like that, right? So take that small step, stay with it, correct? And tell your consumers you're taking it. 50% of your consumers will appreciate it, right? 2%, 10% may pay a little bit more for it, but don't worry, do the right thing, correct? And I think the biggest example for us is that what we did during COVID. Because what we did during COVID, we did as a community, right? Because we realized that
कि या तो हम इसमें से स्ट्रॉन्ग इमर्ज होंगे एज अ कम्युनिटी, या तो अगर लग जाएगी तो सबकी लगेगी, राइट? Sustainability is like that only. It won't happen that suppose he is more sustainable, I am not. तो इनका planet बचेगा और मेरा planet नहीं बचेगा. हम एक ही बस में बैठे हुए हैं, correct? So all of us have to take. ये niche नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल. And I think all of us here have a role to play. Forums like Professional Beauty, we have a role to play. So everyone must do their little bit. We should not make this niche. We should make it something which everybody can easily take one step towards it. And I think, वन टीनी वीनी पॉइंट, yes, मैं आपको बता दूं कि हम सब ये करते हैं कंज्यूमर के लिए, लेकिन जैसे हम गणतंत्र में कहते हैं कि हमारा जो सिटीजन है वो बहुत होशियार है, वैसे हमारा जो कंज्यूमर है ना वो भी बहुत ही सुलझा हुआ है. उसका एक एग्जांपल देता हूं. कोविड के बाद वो जो पीपीई किट वगैरह होता था उसका एक्सपेंडिचर होता था पूरे, नॉट जस्ट द किट बट द सैलून का डीप क्लीनिंग, ये वो एवरीथिंग, राइट? तो क्वेश्चन ये था कि उस पूरे का एक हर कस्टमर को सर्व करने का एक खर्च होता है, क्या कस्टमर इसके ज्यादा दाम देगा या नहीं. और बहुत डर लग रहा था सबको कि ये चार्ज करेंगे तो वैसे भी लोग नहीं आ रहे हैं और आएगा कैसे. तो हमने एक्चुअली एनरिच में एक सर्वे किया और कस्टमर्स को पूछा कि ये सब चीजें करने का इतना दाम पड़ता है, उसमें कोई भी मार्जिन लगाए बिगर इतना खर्चा आ रहा है, क्या आप इतने पैसे खर्च करोगे आने के लिए? एंड कैन यू इमेजिन, कस्टमर सेड यस. क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर ये भी जानता है कि अगर उनको 10 चीजें चाहिए तो उन 10 चीजों का एक दाम भी होता है. अगर हम कहें कि हम ये 10 चीजें कर रहे हैं लेकिन आपके लिए फ्री, तो उनके दिमाग में डाउट होगा कि शायद एक्चुअली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. लेकिन आपको साथ साथ में, तो पहले हमने उसको चार्ज किया लेकिन लोगों को बताते रहे कि अगर आपका बिल इतना हुआ तो हम चार्ज नहीं करेंगे. 3 महीने बाद कहा कि पहले हम इतना दाम देते थे, हमने ज्यादा नेगोशिएशन करके इसको कम कर दिया, अभी हम आपको इतना ही चार्ज करेंगे. तो कहीं ना कहीं आपको भी अगर आपने नेकी से काम किया तो कस्टमर आपका 100% साथ देने वाला ही है. और सचिन, उसमें एक्चुअली सेफ्टी, कस्टमर्स का सेफ्टी कस्टमर को पता था. अगर पीपी किट अगर यूज करते हैं तो सेफ्टी के वजह से वो दे वर रेडी टू पे दैट. बट व्हेन इट कम्स टू द सस्टेनेबिलिटी और ऐसे कुछ चीज़ अगर हम लोग यूज करने जाते हैं तब दैट टाइम यू नीड लॉट ऑफ एजुकेशन टू एजुकेट द कंज्यूमर, और उसमें ही अपना एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है. उतना ही मैं इस पॉइंट के ऊपर कहना yeah, चाहती I हूँ. was going to bring that point that customer awareness is very important. जब तक उन्हें कन्वे नहीं करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और शायद वो नॉमिनल एक्स्ट्रा पे भी नहीं करेंगे. सो what suggestion do you give in marketing this whole concept of sustainable salons? Consumers तक कैसे ये बात पहुंचे कि जो हम कर रहे हैं ये सही है और आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए. हम लोग हर साल फेस्टिवल सीजन में, जब मैं एनरिच में था, अक्टूबर टू दिसंबर हम एक ब्यूटी एंड ब्लिंग नाम का बड़ा फेस्टिवल करते थे. हमने उस पूरे चीज को सस्टेनेबल तरीके से करना शुरू किया पैंडेमिक में. हमने उसका नाम रखा ग्रीन रिच रिवॉर्ड्स, और हमने लोगों को कहा, हमने एक रिसाइकलिंग कंपनी के साथ टाई अप किया, उनके बड़े बड़े बक्से हमारे स्टोर में रखे और लोगों को कहा कि आप अगर अपने घर से प्लास्टिक लाओगे, कागज लाओगे, पुराने कपड़े लाओगे, तो उन हर चीज पे हम आपके खाते में पॉइंट्स दर्ज करेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप सर्विसेज और प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. इसको हमने ग्रीन रिच रिवॉर्ड्स प्रोग्राम बनाया और इससे 3-4 चीजें हुई. एक ऑफर का ऑफर था, दूसरा सस्टेनेबिलिटी का भी काम हो रहा था, तीसरा हम लोगों को ये भी बता रहे थे कि इन चीजों पे हमारा ध्यान है, तो जिन लोगों का, कंज्यूमर्स का ऐसी चीजों के साथ के तरफ ज्यादा ध्यान है वो भी केंद्रित होंगे. तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं. प्रमोशन में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि हम एजुकेट करते रहे कि गो ग्रीन, लेकिन उसको सिर्फ कहने के बजाय अगर हम उसको करके हमारे इर्द गिर्द के कम्युनिटी को उसमें हम कोऑप्ट कर लें, उनका सहभाग उसमें बढ़ाएं, तो अपने आप से एक चीज से 3-4-5 काम हो जाते हैं. So something like that should be done. Yes, absolutely. You have to add Yeah. something. So point is that when it comes to the marketing, मेरा एक ही है उसके तरफ देखने का सोच. कोई भी चीज़ अगर आप बार बार अगर रिपीट करते हो, बार बार बोलते हो कस्टमर्स के साथ, अगर उनको एजुकेट
टाइम नहीं होगा, लेकिन सब जगह से जहाँ से आपके सलून का एक एक कॉर्नर अगर वो चीज़ को लेके बात करता है तो डेफिनेटली अवेयरनेस क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल, जब हमने वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स का जब हमने शुरुआत किया तो स्कूलों में हमने ओथ शुरू किया. अभी प्रार्थना के साथ रोज ओथ जो है वो शुरू हो रहा है कि मैं मोबाइल यूज़ करने की तरफ सतर्क रहूँगा, सो एंड सो, जो भी हमने एक प्रार्थना छोटी सी उनको दी. एंड वी आर सीइंग दैट इज एक्चुअल रिजल्ट वी हैव सीन. जो रिजल्ट हमने अभी रिसर्च में पब्लिश किया, एक्चुअल रिजल्ट जहाँ जहाँ पे स्कूल्स में हमने शुरू किया था, रीज़न यही था, बम्बार्डिंग कॉन्स्टेंटली वो चीज़ जो है उनको रोज रिपीट की जा रही, उनके दिमाग से रोज जा रही, सामने से रोज वो लोग बच्चे बातें कर रहे हैं. सो यही है कि हमें भी अगर ये सस्टेनेबिलिटी अप्रोच करना है और उसका मार्केटिंग करना है तो हर एक मीन्स इंक्लूडिंग योर फ्रंट डेस्क टू मैनेजर टू each and every person in the saloon should be taking the responsibility to market about that. और जैसे इन्होंने बोला बड़े इसमें तो आप बहुत अच्छे से ये कर सकते हो, मीन्स अप्रोच कर सकते हो. बीच में बहुत 3-4 साल पहले, मीन्स मुझे अभी याद नहीं, 4 या 5 साल पहले मैंने बहुत एफर्ट्स डाले थे. जो आपके जो इक्विपमेंट्स है सलून्स में, वो इक्विपमेंट हमें आप डोनेट कीजिए. और वो इक्विपमेंट जो हमने गाँव में पहुँचाए थे, गांव के सलून्स में इंडिविजुअल जो ओनर्स थे उनको हमने दिए थे, जो यूज किए हुए इक्विपमेंट है वहाँ पे उनको चल जाता है, दुरुस्त कर लेते हैं. कुछ वो कारपेंटर से थोड़ा काम करवा के वो लोग दुरुस्त करके वो यूज करते हैं. सो ऐसे भी कुछ चीज़ें जैसे इन्होंने बताया कि इसके इनके ये से पॉइंट देने की वजह से कंज्यूमर को अवेयरनेस हो गया, कंज्यूमर को भी बेनिफिट हुआ. लेकिन जो चीज़ ये चाहते थे कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कुछ बातें की जाए, तो वो एज ए बिग ऑर्गेनाइजेशन एज एनरिच उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे वो किया. अगर आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वो नहीं करना है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप आपके इसमें से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और मार्केट कर सकते हो. Thank you so much, Rekha. Thank you, Pushkaraj. Thank you, Sachin sir. This was a really amazing session, and I'm sure जो भी सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडलीनेस को लेकर आपके मन में सवाल थे वो सारे हमारे पैनल ने आंसर कर लिए. सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पैनल प्लीज. Thank you. And I would request you all to step forward for, yes, your digital. So digital definitely. But first I thought, there will be very less crowd for this subject. No, but then, you should be clapping for yourself actually. also. A very attentive audience for this session. And yes, Rekha. Yes. So it was just a request, digital detox, which is coming on 10th of December. Or this is the only one branded day for talking about the digital detox, taking time away from your mobile and social media for little bit in a day-to-day life. और वो 10 दिसंबर है. सभी सलून्स ओनर्स को मैं विनंती करती हूँ, आपके सलून के माध्यम से जैसे भी आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हो, प्लीज़ कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए. दिस इज़ द ओनली वन इनिशिएटिव स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया और आज 65 कंट्रीज़ में ये इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट किया गया है. जैसे हम लोग सस्टेनेबिलिटी के लिए बात करें, वैसे ही आज ये एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल और सोशल मीडिया का सबके दिमाग पे जो भी चल रहा है, जो भी अच्छा बुरा जो भी परिणाम चल रहा है, उसके लिए वी आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, वी शुड बी टेकिंग द स्टेप फॉरवर्ड. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू कम फॉरवर्ड एंड सेलिब्रेट दिस डे. And this day, of course, we also celebrate in bigger way on organizing the event. But through your saloon, please create the awareness. और 10 दिसंबर और सी डिजिटल डिटॉक्स का हम लोग जस्ट बात कर रहे थे, जस्ट 2 मिनट वेकेंट है. यहाँ डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बहुत गलत फहमी है. लोग ये सोचते हैं कि हमें बिल्कुल भी मोबाइल और सोशल मीडिया जो भी है टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी चाहिए. दैट विल बी रॉन्ग. In technology world, we should be more aware about the latest, means all the technology whatever we are using. But यही होता है कि जो चीज़ हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूम करने की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ गई तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वही डिजिटल डिटॉक्स के बारे में है. एक्सेस यूज, वी आर नॉट टॉकिंग डोंट यूज, वी आर सेइंग दैट इज एक्सेस यूज. जो भी आप एक्सेस यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा आपके खुद के लिए समय निकालिए और थोड़ा सा आपके खुद के वेलबींग के लिए ध्यान दीजिए. दैट्स हाउ डिजिटल डिटॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू गॉट द आंसर. पुष्कराज वाज आस्किंग मी. मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं यूज़ नहीं करता, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, राइट? Why don't you tell everybody the secret behind why you started digital? No, you did that. So let me share with you the real reason why Rekha started Digital Detox Day. Does anyone know by any chance? क्यों?
तो यार अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल, आप सबको आपके बर्थडेज पे बहुत लोगों से मैसेजेस आते होंगे, आपको अच्छा लगता होगा इतने लोगों ने मैसेजेस भेजे. तो रेखा डज नॉट लाइक इट. ओके, रेखा डज नॉट लाइक गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस फॉर पीपल सेइंग हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे. शी सेइंग क्या सेम मैसेज सब लोग लिख रहे हैं. एंड डिजिटल डिटॉक्स डे इज ऑन 10th December because it is Rekha's birthday. Okay, so because she does not want to receive lots of wishes on her phone and be responsible to answer all of them, she said, let me do something really large. And she started Digital Detox Day. Thank you. Thank you. So this namaste. Sorry, the one person who put this all together, let's have a round of applause for her, and this is for Kanishka. This is the sign actually away from the gadget mobile for a while. That's why we do the namaste. No gadget. Sponsored है पे. Thank you so much, panelists. I will request you to step outside the SMC hall. My team is there to take video bites from you. That would really help us. And with that, we take a break for lunch and reassemble at 2:30. हमारा next session 2:30 को start होगा. So please lunch break लेकर दोबारा मिलते हैं. Thank you so much.